हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज वैसे तो हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान, इंडिया, चाइना बातें करते रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा आज एक पढ़ी लिखी एकेडमिक डिस्कशन होनी चाहिए। एंड फॉर दैट आई रिक्वेस्टेड मैडम गौरी द्विवेदी। और इन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है, ब्लिंकर्स ऑफ, हाउ विल द वर्ल्ड काउंटर चाइना। और ऑब्वियसली दिस इज अ गुड एडिशन फ्रॉम एन एकेडमिक लेंस, एंड particularly coming from the Indian lens एक important होगा। एंड जो मिस गौरी है वो मैं बता सकती हैं कि while sitting in India how she looks at China, and वो कैसे समझती हैं कि दुनिया को कैसे चाइना को काउंटर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच गौरी। Thank you. Namaste, aapko Kamal Chima ji. Thank you for having me over on this discussion. As far as the book is concerned, it is a bird's eye view of the many challenges that China presents. The book makes for a case that one needs to, as it is very provocatively titled, Blinkers Off. It means that the world needs to take its blinkers away from just a military perspective that defines the China challenge. It's not just about the frigates and submarines on the South China Sea or the tanks on the Indo China Ladakh border. The challenge that China presents is multidimensional, multifaceted. It requires us then to look at the challenge in a much more dynamic way, which means that technology will be extremely important, which means that even some of the other domains like biological warfare could be very important going forward, and even economic warfare. हमने दुनिया में सबने देखा पिछले एक साल में किस तरह से ऑस्ट्रेलिया को टारगेट किया चाइना ने, उसके एक्सपोर्ट्स रातों रात बंद कर दिए गए, $3 बिलियन का नुकसान हुआ. All that happened because China was playing to its strength, which is economy. It's a $14 trillion economy, and when it decides to use its economic muscle, it can cause a lot of pain around the world. ऑस्ट्रेलिया के अलावा मंगोलिया, साउथ कोरिया, नॉर्वे, बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने ये फेस किया. एंड आगे जाके हाउ टू इंश्योर दैट दिस चैलेंज डजंट एम्पलीफाई फर्दर इज व्हाट द बुक टॉक्स अबाउट, कि कैसे इन सारे मुद्दों पर, कैसे इन सारे इश्यूज पर द वर्ल्ड कैन कम टुगेदर एंड बैटल चाइना. एंड फॉर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू टेक योर ब्लिंकर्स ऑफ, think more than just military, think more than just that the contest will be in traditional warfare, it will be newer dimensions of conflict. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन गौरी साहबा, मैं खुद भी थोड़ा स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी चीज समझने में मेरी हेल्प करें कि ये कैसे मुमकिन है। अभी तो चाइना ने अपने मिलिट्री मसल्स दिखाए नहीं है। चाइना, लेट्स से इट्स गॉट अ $250 बिलियन, $260 बिलियन, और इतना ही 270 अरब डॉलर डिफेंस बजट है, एज कंपेयर टू अमेरिका जो कि दैट स्टैंड एट $700 बिलियन। सो और ना ही उन्होंने कोई अपने उस तरह मिलिट्री मसल्स दिखा रहे हैं। वो तो they have this वो जो strategic communication चाइनीज किया, that is about shared growth, जिसे वो कहते हैं कि let's go for a shared growth। वो तो they don't talk of shared values or this, वो they talk of comprehensive strength। इस तरह की terminologies वो introduce कराते हैं। So do you think the world really want to compete China militarily, जबकि वो तो they talk about economy, they talk about non-traditional security threats, which is, let's say, climate change, which is, let's say, economy, which is, let's say, other societal challenges। तो दुनिया क्यों उनको मिलिट्री की तरफ देखती है जबकि वो उसमें अभी तक पहुंचे नहीं है वहां पे। हाउ यू हैव एनालाइज दैट इन द बुक? बहुत बहुत अहम सवाल आपने पूछा कि एक तरफ चाइना जो है, इट इज टॉकिंग अबाउट ऑल द राइट नॉइजेस, इट इज मेकिंग ऑल द राइट नॉइजेस दैट लेट्स कम टुगेदर, लेट्स बैटल क्लाइमेट चेंज, लेट्स कम टुगेदर, हैव अ सॉल्यूशन फॉर वैक्सीन्स, इवन इफ Chinese made vaccines are questionable, but I won't get into that right away. What they are making is the right noises. Let's come together, the world is one big family, we need to address all these issues collectively. बिल्कुल सही. बट बात यह है, चाइना ट्रैक रिकॉर्ड बिलाइज ऑल दिस गुड टॉक. एंड द रीजन फॉर दैट इज, आप ज्यादा पीछे ना जाइए, पिछले कुछ सालों का ही आप घटना देख लीजिए. जस्ट सी अ कपल ऑफ इयर्स इन द लास्ट few years as far as global governance is concerned. आप कितने भी global institutions को देख लीजिए, all of them have been compromised, and they've been compromised by China's ability to pay either directly
or influence indirectly. WHO is just one example. WHO had feet of clay. We all realized it last year. But there are so many other institutions which are now run either by China proxies or by those who've been completely taken over by China in all domains. And those are aspects which are far more serious than what we understand right now. You're right that nobody wants to fight militarily against China. Even China doesn't want it, because they know that if the world gets together, so I'm talking about the liberalized world, if they come together, it will not be a very simple contest for China as well. And they don't want that. That will put them farther back, about 40 years behind. All their economic growth that they've achieved in the last 40 years would be completely wiped away in a conflict of less than a fortnight. Even they understand that, which is why they are preparing for the conflict to be in other domains. ये उन्हें भी पता है कि militarily हमें नहीं करना है कुछ भी, but अगर हमें, we want to turn the world upside down, if we want the power equations in the world to be turned upside down, we need to then work on some of the other parameters. आज तक आप बताइए कमर चीमा जी, आप यू आर ऑल्सो somebody who understands and reads political economy world over. The world still doesn't know an answer as to whether coronavirus did or did not come from a lab. The fact that we are still sitting at as we were on day zero tells us something about the ability of the Chinese to ward off a probe. They have been successful in defeating all efforts of an investigation. If there is nothing that the lab had, why is it that all investigations have not been successful or have not even been allowed? That gives a glimpse of what lies ahead, which could be possibly biological warfare. 50 साल हम लोगों ने बात की है न्यूक्लियर वॉरफेयर की, और वो सब उसके आगे, बायोलॉजिकल वॉरफेयर के आगे कुछ भी नहीं होगा अगर जिस तरह की बातें चाइना के लैब से आ रही हैं वो सच हैं तो. ओके, आई गॉट योर पर्सपेक्टिव. आप सही कह रही हैं. ऑब्वियसली यू हैव टू लुक इनटू दैट डायमेंशन एज वेल. सो गौरी साहब, ये बताइएगा कि आप कैसे समझती हैं कि दुनिया चाइना को कैसे काउंटर कर सकती है? लुकिंग एट द राइजिंग इकोनॉमिक क्लाउड, सप्लाई चेन पे उनका कंट्रोल है, सबसे सस्ती हर चीज वो दुनिया को मार्केट दे सकते हैं. अभी मैं देख रहा था कि पता नहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के कहाँ देख रहा था जनाब के 1 सेंट में वो मास्क बना लेंगे. सो हाउ कैन वर्ल्ड compete विद देम, जबकि दुनिया की जो बड़ी, जैसे वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाता है चाइना को. सो जब चाइना को काउंटर करना है तो किन डायमेंशंस पे काउंटर करेंगे? इकोनॉमी के अलावा और किन जगहों पे वो काउंटर कर सकते हैं चाइना को? एंड व्हाट इज द मोडस ऑपरेंडाई? क्या मेथड क्या हो सकता है? The method is to come together. That is what the book's big premise is, that China is now much bigger than what USSR was at the time of Cold War. वो USSR से बड़ा है, उसकी economic might ज़्यादा है, and that means that it will require countries to come together. US, Japan, India, France, these are some important countries, even Australia, that will come together to together ensure and collectively ensure that China's different areas of strength can be countered successfully. China cannot be countered by one nation on its own. We've all realized it. We've seen that now, and I think there is also a realization by the world as well that unless we figure out a common roadmap, it will be difficult to address the China challenge for anybody. Anybody, I mean any country, and that has to be collectively done in all domains. If America, Japan, India, Australia, France collectively have a common military strategy, that will be far more effective than what China can ever imagine, even if it seeks the help of Russia. In all this, we haven't, really understood how the Russians will play. They're going to play a wait and watch game till the very end. But even then, if Russia does decide to come out and back the Chinese, if the world comes together with a common military strategy, it's not going to be so easy for China, even with all the military funding and strategy that it's been putting in place in the last 15 years. That's one particular method. Second method, आपने बोला about the economy. Economic strength of China cannot be countered individually. You are absolutely right that they are masters of supply chains. Every supply chain now is being mastered by China. All infrastructure they've got in place. 8 out of the 10 ports in the world are now China.
which means that China has mastered the entire port traffic, container port, the whole ecosystem is now mastered by China. To counter all of this, again, you have to come together. If some of these prominent countries come together, then those supply chains, they are not cast in stone. They can be broken. Yes, it will require effort. Yes, there could be some short term gain for countries and for some important companies, but there could be huge economic profits and upside about 3, 4, 5 years down the line. And that's a call that these countries need to take collectively as to how they will break those supply chains that China has right now mastered. ओके सो लेकिन इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो तो ये है कि चलो इकोनॉमिकली भी हो गया और मिलिटरली भी हो गया, लेकिन मुझे जो चीज समझनी है वो ये है कि इंडिया के लिए हाउ इंडिया कैन कैन डील चाइना। और ये बताइएगा कि क्या इंडिया अकेले, इफ लेट्स से रिसेंटली हमने देखा ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, क्वाड आ गया, और जितनी अमेरिकन असिस्टेंस और जो वेस्टर्न असिस्टेंस इंडिया को इस वक्त आ रही है, although India has an absolute potential to deal with the Chinese, लेकिन obviously they can't do it alone. They need somebody's support. और recently जो Antony Blinken American Secretary of State आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि we should give a preferential treatment to India, और उन्होंने कहा कि बाकी पार्टनर्स को भी कहा। इंडिया कैसे डील कर सकता है चाइना को, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि द नेक्स्ट वॉर, जो वॉर्स होंगी, दे विल बी ऑन द स्पीड ऑफ द लाइट, लेकिन इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस तो इस पर रेडी नहीं है। तो मिलिटरिटी तो आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। $72 बिलियन बजट, कहाँ $270 अरब बजट। देन व्हेन इट कम्स टू द मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की बात हो, तो रिसेंटली जो इंडिया और पाकिस्तान का पिछले अगस्त में जो मामला खराब हुए, तो हमने आपके जहाज गिरा दिए। तो व्हेन इट विल बी चाइनीज, तो हाउ डू यू सी, हाउ हैव यू सीन दैट इन योर बुक, कि आप किस तरह चाइना का मुकाबला कर पाएंगे या काउंटर कर पाएंगे? दैट इज अ क्वेश्चन व्हिच मेनी वांट टू नो, एंड माई सेल्फ एज वेल एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। जी, कंवर जीनाथ साहब, मैं इंतजार कर रही थी कि कब आएगा आपका ये सबसे दिल के करीब मुद्दा। तो ये काफी अहम मुद्दा है। इसको अगर हम उसकी पूरी सीरियसनेस से समझने की कोशिश करें, तो जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि चीन अब इतना बड़ा है कि उसकी अगर सारे पहलू देखें तो एक कोई कंट्री अकेले उससे नहीं लड़ सकती। इसके लिए सबको साथ आना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मिलिट्री की। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये बात सही है कि अगर मिलिट्री के आंकड़े, ये तो आप भी मुझसे बेहतर जानते ही हैं कि कोई भी आंकड़े सिर्फ पेपर पे नहीं देखे जा सकते। देयर इज मोर देन व्हाट नंबर्स इंडिकेट। नंबर्स तो एक प्लेन वनीला कंपैरिजन होता है, कोई कंपैरिजन उस हिसाब से नहीं हो सकता। पहली चीज, अगर आप आर्मी की बात करें तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और चाइनीज इक्विपमेंट की आपने बात की, मैं देखिए आपके वो जहाज वाले कमेंट को भी चलिए जाने देती हूँ कि चलिए उस मुद्दे को छोड़ दिया जाता है आज के लिए। पर बहरहाल मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम चीनी इक्विपमेंट को देखें तो उसकी दो प्रॉब्लम है। पहली चीज तो ये कि वो चीनी है, इट्स चाइनीज। दूसरी चीज है वो अनटेस्टेड है, किसी को नहीं पता कि वो इक्विपमेंट वाकई चलता है कि नहीं चलता है, सोल्जर्स को भी नहीं पता है। तीसरी चीज, 40 साल हो गए चाइनीज आर्मी ने कोई लड़ाई लड़ी हो। भारतीय जवानों ने तो पिछले 40 सालों में हर तरह से हर कठिनाई में और हर तरह के मुद्दों को एड्रेस किया है। देयर हैव बीन मेनी चैलेंजेस दैट इंडियन आर्मी हैज फेस्ड। चीन की एक पूरी जनरेशन निकल गई, एक पूरी पीढ़ी निकल गई आर्मी की, जिन्होंने कभी लड़ाई ही नहीं लड़ी। तो उन्हें पता ही नहीं है। देखिए, एक चीज होती है हथियार, एक चीज होती है ड्राइंग बोर्ड पे स्ट्रेटेजी बनाना, और एक चीज होती है वाकई में लड़ना। तो ये सारा तो सबसे बड़ा गैप है ही चीनियों का। इसके अलावा जैसा मैंने आपको इक्विपमेंट की बात कही, एक तो उनका इक्विपमेंट अनटेस्टेड है, दूसरा अनरिलायबल है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। वो उन्हें नहीं मिला है। उन्होंने सारी अपनी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो आई है, जो इंडिजिनस बनाई है उन्होंने कॉपी की हुई है। आपको भी पता है ये बात, दुनिया को भी पता है, ये अमेरिकन और रशियन मैन्युफैक्चरर्स को भी पता है, जिनका उन्होंने टेक्नोलॉजी कॉपी कर करके बनाया है, कि ये सारी जो कॉपी, आप कॉपी बोले, स्टील बोले, जो बोले, क्योंकि ये तो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। पर उसके साथ से जब ये मिलिट्री इक्विपमेंट बनते हैं और अनटेस्टेड होते हैं, अनरिलायबल होते हैं, और सोल्जर्स की भी उस हिसाब से तैयारी नहीं हुई है, तो ये एक सबसे बड़ा मानना, एक बड़ा बहुत नेगेटिव फैक्टर है।
अब दूसरी हम बात करते हैं ओवरऑल मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की और इंडिया के रोल की पूरे रीजन में। देखिए, ये बात इस वक्त दुनिया जानती है और चीन भी जानता है कि अगर एशिया में उसको टक्कर नहीं, देखिए बात सिर्फ लड़ाई की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है काउंटर करने की। एक आप एक वेट का एक काउंटर वेट निकालना चाह रहे हैं, तो वो काउंटर वेट अगर कोई बन सकता है तो वो इंडिया है। इंडिया जो है वो इंडियन ओशन में भी एक बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है, तो वो साउथ चाइना सी पे भी इम्पैक्ट करता है। अंडमान निकोबार की जो उसकी आइलैंड्स की लोकेशन है, उससे वो पूरे साउथ चाइना सी तक पहुंच सकता है, फादर ईस्ट तक पहुंच सकता है। और उसी हिसाब से अगर आप देखें तो वो वेस्टर्न इंडियन ओशन तक भी जा सकता है, ऑल द वे टिल द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो वो जो लोकेशन है, जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो किसी और कंट्री के पास नहीं है, जापान के पास भी नहीं है, और अमेरिका के पास अनफॉर्चुनेटली इस एरिया में उसके पास कम एक्चुअल बेसिस हैं। जापान, साउथ कोरिया, गुआम के बेसिस के अलावा एक्चुअल लोकेशन उसके पास कम है अपनी टेरिटरी बोलने के लिए। तो देखा जाए तो कौन काउंटर कर सकता है चाइना को इस पूरे रीजन में? ऑफ कोर्स इंडिया कर सकता है। ये भी बात आपकी सही है कि जब हम आंकड़े मिलाते हैं तो इकोनॉमिक आंकड़े भी मिलाने पड़ते हैं। तो भाई वो भी एक सच है कि वो एक 13-14 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, तो उसको मैच करने के लिए, उसका मिलिट्री बजट मैच करने के लिए इंडिया को आगे काम करना पड़ेगा। और ये भी बात है कि ये सब वर्क इन प्रोग्रेस है। कुछ भी काम ऐसा नहीं कि आज स्थायी हो गया। अगर हम कल की परसों की 10 साल बाद की लड़ाई की बात करते हैं तो उसकी तैयारी आज से करनी पड़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि चीन और इंडिया का जो भी कॉन्टेस्ट होगा, अगर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगा, मैंने आपको बताया किन किन मुद्दों पे मुझे लगता है चीनी सोल्जर्स बहुत बहुत डिसएडवांटेज पे हैं। और उसके अलावा मुझे लगता है, मेरा मानना है कि इंडिया अब यहाँ से जो काउंटर रोल प्ले करेगा, उसमें दुनिया उसे पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। ओके। अच्छा मैडम, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, और मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने ठीक कहा, आपका एक ऑब्वियसली यू हैव अ पर्सपेक्टिव, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जो आपने कहा चाइनीज फौज ने तो कभी लड़ाई नहीं लड़ी, 40 साल हो गए, आपकी फौज ने तो लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि जो अगली लड़ाइयां होनी है, देयर विल बी साइबर वॉर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर की बात होती है, एंड इंडियन आर्मी हैज नॉट फॉट दोज वॉर्स। अभी तो वो आईटी में उस तरह गई भी नहीं है। जो साइबर जो डिविजन जो इंडिया चाइना ने बनाई हुई है, इंडिया तो उसके कहीं नजदीक तरीन भी नहीं पहुंचा। खैर, एनी हो, दैट इज अगेन अ डिफरेंट क्वेश्चन। सो हाउ डू यू सी कि आप समझती हैं कि जो अभी नई इन्वेस्टमेंट्स इंडिया कर रहे हैं इन इंडो पैसिफिक, उसमें इंडिया कैसे डील कर सकता है चाइना के साथ? काइंडली जरा इस हवाले से बताइएगा। ये आखिरी सवाल आपसे। जी, जी, आपने जो साइबर वाला इशू पूछा वो सही पूछा। मैं इसलिए बताना चाहूंगी कि ये मेरी किताब में ये चैप्टर है, प्रिपेयर फॉर आई वॉरफेयर, जो आई वॉर, जो कि एसेंशियली इंफॉर्मेशन वॉर है, साइबर वॉर है। तो ये बात सही है कि साइबर वॉरफेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आगे जाके किसी भी तरह के कॉन्टेस्ट का। और इसमें इंडियन आर्मी की सारी मॉडर्नाइजेशन जो होगी, वो अगेन इट हैज टू बी डन कीपिंग इन माइंड दैट कंट्रीज विल कम टुगेदर। कोई भी लड़ाई यहाँ से आगे इंडिविजुअल नहीं होगी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। फ्यूचर वॉरफेयर, फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर जो है, वो ऐसा नहीं होगा जैसे हम अभी प्रिडिक्ट करते हैं कि गन्स चल रहे हैं और टैंक्स चल रहे हैं और इस तरह की लड़ाई नहीं होगी। सारी लड़ाई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की होगी और इसमें मॉडर्नाइजेशन, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसीलिए आउटर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेस, साइबर स्पेस, इन सब पे काम करना बहुत जरूरी है। ये आप और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि चीन का कोई भी मिलिट्री पेपर अगर आप ले तो उसमें सबसे पहली चीज वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी आगे की लड़ाई होगी तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम साइबर वॉर से शुरू करें, ताकि अगले के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स हम शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर दें। तो वो बिल्कुल क्लियर है अपने आउटलुक में। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, अमेरिका, जापान, सबके लिए तैयारी इसी मुद्दे पे करनी है और इसी फ्रंट पे सबसे पहले करनी है कि इंफॉर्मेशन वॉर फेयर हमें करना है। और एक चीज इसका मैं बता दूं कि अनलाइक ट्रेडिशनल बाउंड्रीज, इलेक्ट्रॉनिक या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बाउंड्रीज के तो मोहताज है नहीं। वहां पे सबको एक साथ आना पड़ेगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि ये फिजिकल बाउंड्रीज के हिसाब से इसी के अंदर लड़ाई लड़ी जाएगी। उसमें जब तक सारी कंट्रीज एक साथ नहीं आएंगी, यूएन में नई स्टैंडर्ड्स नहीं बनेंगी, तो तब तक ये बात पूरी तरह से अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच गौरी साहबा, आपने हमें टाइम भी दिया। और व्यूअर्स, मैं आपको कहूंगा कि ये ब्लिंकर्स ऑफ जरूर खरीदें। मैं भी इसको ऑनलाइन लेने की कोशिश करूंगा, अगर पाकिस्तान में आए तो जी, हार्ड कवर लेने की कोशिश करूंगा।
और गौरी मैडम को ज्यादा रॉयल्टी जानी चाहिए। इन्होंने इतनी एक अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस है, और किताब लिखना लिखना बहुत मुश्किल काम है। अब बातें कर लेना जो हम करते हैं ये तो बहुत आसान है, लेकिन मैं भी जब कभी रिसर्च पेपर लिखूं तो मुझे पता है, या अपने थीसिस वगैरह, तो पता है कि कितना मुश्किल काम है, एक एक वर्ड को वेरीफाई करना पड़ता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर बुक गौरी साहबा, और एंड आई विल आस्क व्यूअर्स टू गेट दिस बुक अगर आपको टाइम मिले, एंड डू रीड इट। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you so much, Kamal Shivaji.